اسمبلی میں اور ملک کی تمام اسمبلیوں میں اب قیدی 804 اس کی پارٹی اور خان کے لوگوں کے ساتھ گزشتہ 2 سال میں روا رکھے گئے ہر ظلم جبر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب تک نواز شریف پیپل پارٹی اور MQM کے حلق سے اپنا مینڈیٹ اگلوا نہیں لیں گے تب تک ہم قومی اسمبلی میں آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ سن لو، دونوں کان کھول کر سن لو کہ پاکستان ہم ہیں، ہم پاکستان ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ ریاست بھی ہم ہیں، نہ پاکستان ہے۔ آپ 15% کی اقلیت ہے جس نے قیدی 804 کا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے پاکستانیوں کے حقوق بری طرح پامال ہوئے۔ خان 7 ماہ سے بے گناہ اپنے ان نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے اس کا گناہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان کا گناہ کیا ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ان کا گناہ کیا ہے؟ حقیقی آزادی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے استعفے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ سنیں، جسٹس گلدار کی سربراہی میں 5 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان یا PTI سے وابستہ کسی مقدمے میں منصف نہیں بیٹھیں گے۔ پھر بیٹ کس طرح اس نے ہم سے چھینا؟ قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو پامال کیا ہے، لہذا پاکستانی قوم چیف جسٹس آف پاکستان کے استعفی کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے موجب قاضی فائز عیسیٰ PTI کے کسی مقدمے میں نہ بیٹھے بطور منصف۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اسمبلی میں اور ملک کی تمام اسمبلیوں میں اب قیدی 804 اس کی پارٹی اور خان کے لوگوں کے ساتھ گزشتہ 2 سال میں روا رکھے گئے ہر ظلم جبر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب تک نواز شریف پیپل پارٹی اور MQM کے حلق سے اپنا مینڈیٹ اگلوا نہیں لیں گے تب تک ہم قومی اسمبلی میں آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ سن لو، دونوں کان کھول کر سن لو کہ پاکستان ہم ہیں، ہم پاکستان ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ ریاست بھی ہم ہیں، نہ پاکستان ہے۔ آپ 15% کی اقلیت ہے جس نے قیدی 804 کا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے پاکستانیوں کے حقوق بری طرح پامال ہوئے۔ خان 7 ماہ سے بے گناہ اپنے ان نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے اس کا گناہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان کا گناہ کیا ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ان کا گناہ کیا ہے؟ حقیقی آزادی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے استعفے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ سنیں، جسٹس گلدار کی سربراہی میں 5 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان یا PTI سے وابستہ کسی مقدمے میں منصف نہیں بیٹھیں گے۔ پھر بیٹ کس طرح اس نے ہم سے چھینا؟
काजी फैज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के उस 5 रुकनी बेंच के फैसले को पामाल किया है, लिहाजा पाकिस्तानी कौम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफा का मुतालबा करती है। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मूजिब काजी फैज ईसा पीटीआई के किसी मुकदमे में न बैठे बतौर मुंसिफ। आप इसकी तायीद करते हैं? हमारा कैंडिडेट चोरी हुआ है, हमसे छीना गया है हमारा हक। साफ दिखाई दे रहा है कि किसने चोरी की। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। डीजल तो लोटा है तो वो लोटा ही रहेगा। अब डर तो नहीं है। तैयबा राजा, सनम जावेद 10 महीने जेल में गुजारे, तो अगर वो गुजार सकते तो फिर कोई भी गुजार सकता है। इस वक्त इस्लामाबाद के F9 पार्क में मौजूद हूँ। मुबैना धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरा जो है वो जारी है। F9 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरा होगा। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। नाराबाजियों का सिलसिला भी जारी है। मेरे साथ भी यहाँ पर कुछ वर्कर्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या जज्बात है आपके? पुलिस जो है चारों तरफ से आपको घेरा हुआ है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, ये तो हमारा हक है। 8 फेब को हमें इमरान खान ने बोला था कि आपने पुरअमन तरीके से निकलना है, आपने वोट डालना है जिस भी कैंडिडेट का आपका है इलाके में। हमने वो बहुत आराम से किया है, लेकिन हमारा कैंडिडेट चोरी हुआ है, हमारा हक चोरी हुआ है, हमसे छीना गया है हमारा हक। मैं अगर आज नहीं निकलती तो जो आगे जनरेशन्स हैं उनके लिए यही चोर मुसल्लत होंगे हमारे ऊपर, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। वो अगर आराम से वो अपोजिशन में आके बैठ जाते और वो लड़ते तो वो अलग बात होती, लेकिन वो बहुत ही नाइंसाफ़ी तरीके से हमारा हक चोरी किया गया है, तो इसीलिए हम निकले हैं। मैडम, कौन सा हल्का है आपका? उम्मीदवार कौन थे और हक आपका चोरी किस तरह हुआ है? मैं बेसिकली बुनेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो हमारा तो वहाँ तो जीत गया है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमारे तरफ से बैरिस्टर गौहर जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं और कबीर खान सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन मैं अपने यहाँ इस्लामाबाद के जो दोस्त हैं उनके लिए निकली हूँ। ये किसी हल्के की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बात है। जहाँ जहाँ पे कैंडिडेट चोरी हुआ है तो उन सब के लिए मैं निकली हूँ। लेकिन जो आपके मुखालिफिन हैं वो तो ये दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी धांधली की है। देखिए, ये तो गलत बात है। पिछले इलेक्शंस में भी आपने देखा है कि किस तरह वोट चोरी हुआ है हमारा। आप सरेआम वीडियोस देख सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी के पास फ़ोन है और वो सारे वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं। तो ये झूठ बोलना तो उनकी फितरत में है, वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो ये कहना कि वोट चोरी हुआ है, धांधली हुई है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि किसने चोरी की और किसने धांधली की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी तो उनको गिराने में मौलाना फजल रहमान साहब का एक अहम किरदार रहा था। PDM का सरबराह थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको ही दोस्ती का हाथ दे दिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? अच्छा, उसके बारे में मैं ख़ुद भी उस तरह नहीं वो करती, क्योंकि डीज़ल तो लोटा है तो वो लोटा ही रहेगा। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं ख़ुद मुतमईन नहीं हूँ इस डिसीजन से। गलतियाँ होती हैं तो आई होप कि उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ये डिसीजन लिया होगा। इस वक्त जो कैदी नंबर 804 है वो अडियाला जेल में है, उसके बावजूद भी वर्कर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। कोई डर खौफ नहीं लग रहा आपको? नहीं, वो कहते हैं ना, इमरान खान ने बोल दिया है, उसने सारा कुछ कह दिया कि चूंटियों की तरह नहीं वो करना चलना, तो उसके लिए हम निकले। उन्होंने इतना शऊर दिया। अगर मैं बात कर सकूं तो ये फॉर्म 45, मुझे तो पिछले इलेक्शंस तक पता ही नहीं था कि ये होता क्या है, लेकिन उस बंदे ने इतना शऊर दिया हमें कि अब हर बच्चे को पता है फॉर्म 45 है क्या। तो डर तो नहीं है। आप देख लें, तैयबा राजा जो हैं, सनम जावेद, उन्होंने 10 महीने जेल में गुजारे, तो अगर वो गुजार सकते तो फिर कोई भी गुजार सकता है। मैडम, 12 बजे का टाइम दिया गया था, यहाँ पर इंतज़ार किसका किया जा रहा है और कब तक आप जो है यहाँ पर रहेंगे? अभी तक शेर अफजल साहब ने बोला था कि यहाँ 11 बजे तक रुकना है और फिर हमने प्रेस क्लब जाना है, लेकिन अब रुकावटें वो खड़ी कर रहे हैं जो गवर्नमेंट है। तो अब देखते हैं, यहाँ तो आ गए, यहाँ पे होंगे। अब वो जैसी कॉल देंगे तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। बहुत शुक्रिया। फाइनल कॉल का जो है यहाँ पर वेट किया जा रहा है। जैसे ही जो मरकज़ी कायदीन है वो यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद ये वर्कर जो है यहाँ से मूवमेंट करते हुए नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और वहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरा होगा।